everyone, welcome back to our classroom, that is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy, English should be skill, not language. ठीक है? Done? So today we have to study another type of sentence, that is imperative sentences. Okay? इसके पहले हमने पढ़ा है कौन कौन से sentences? Assertive or declarative sentences. Let's recall one by one. Assertive or declarative sentences are the sentences which simply states or says something. Okay? For example, I am teaching. You are listening. I am standing. We all are waiting. Birds are chirping. Okay? And then comes the interrogative. Interrogative sentences are the sentences which ask question. That ask question and ends with question mark. For example, what's your name? What are you doing? Where were you? Why are you late? And so many could be formed. So this is assertive or declarative, and second one is interrogative. And now comes the time of imperative sentence. Imperative sentence क्या होते हैं? Imperative sentences are the sentences which gives us command, request और advice. Imperative sentences ऐसे sentences होते हैं जो generally हमें command देते हैं या order देते हैं या request करते हैं, okay, या advice करते हैं. ठीक है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस. ठीक है? ये तीन चीज जिन सेंटेंसेस में होंगे दैट दे आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. यूजुअली दे स्टार्ट्स विथ these. Okay? So these are the some of the imperative sentences. They ends with full stop. Sari characteristics will remain the same, means it must always starts with capital letter and ends with full stop. One thing more, it always ends with full stop, but in case when the command or the order is harsh, ठीक है, then it could be it can end with exclamation mark. We will see it later. ठीक है? अभी right now, imperative sentences are the sentences which gives us request, order or advice, command. ठीक है? चलिए, let's learn it one by one. Fine. Please first do take the screenshot, then we will okay. So imperative sentences are the sentences which gives us command or order, request or advice. Command क्या? किसी चीज को order करना, आदेशित करना, आदेश देना, है ना? The teacher ordered us to bring our notebook. ठीक है? या request. My friend requested me to give her or him his notebook. Advice. My doctor advised me to have balanced diet. ठीक है? So request जब आप किसी से आग्रह कर रहे हैं, advice, ठीक है? And most important thing which you have to keep in mind is when you are framing imperative sentences, कभी कभी ऐसा होता है कि subject is not given. ठीक है? फिर we will learn when subject is not given how to find or how to get subject in the sentence. ठीक है? चलिए करते हैं फटाफट. This is very sweet and small class, short class. Don't shout means don't shout. ये तो रोज का है, घर पे भी यही है, क्लास में भी यही है, बाहर भी यही है, पार्लियामेंट में भी यही है. Just don't shout. Stay quiet.
है ना? So this is imperative sentence. Okay, don't shout, हल्ला मत करिए. Okay, it started with capital D. Okay, it started with capital D and ended with full stop. Okay, it is a group of word, more than one. ठीक है? अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये बताइए आप हमें, वेयर इज सब्जेक्ट? व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, यहां तो डोंट शाउट यही बोल रहा है, हल्ला मत करो. कौन नहीं करे, किससे कहा जा रहा है ना? जब व्हेन इट इज नॉट गिवन, इट इज अंडरस्टूड. जब सब्जेक्ट आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं दिया जाता है ना, तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप उसमें खुद समझें कि सब्जेक्ट इज यू, आप हैं, है ना? यू गेट आउट ऑफ द क्लास, यू लीव द क्लास. मैम लोग क्या कहती हैं? लीव द क्लास. यू स्टे क्वाइट. ऐसा होता है ना? सो दीज आर द इंपेरेटिव सेंटेंस. सो अगर नहीं लिखा है और आपको आता है कि फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस इंपेरेटिव सेंटेंस, देन यू विल राइट डाउन यू. ठीक? और ठीक? और even you can frame it like this: you don't shout. Done? बात समझ में आ गई? Okay? Okay. Next is shut the door. दरवाजा बंद करो. Shut the door. दरवाजा बंद करो. चलिए देखते हैं. Group of words है. It started with capital letter S. Yes. Ended with full stop. Yes. ठीक है? Subject not given. If not given, what will be the subject? Subject will be you. You shut the door. आप दरवाजा बंद करें. Done? Is it clear to everyone? Okay? Please. अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं? ये क्या है आप बताइए जरा. डोंट शाउट, हल्ला मत करिए, दरवाजा बंद करिए, ये सारी चीजें हैं क्या? दीज आर ऑल कमांड या ऑर्डर, है ना? कमांड ही कर रहा, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ना एडवाइस कर रहे हैं. सो दीज आर कमांड. क्या है बेटे? कमांड. दीज टू आर कमांड. ओके, बात समझ में आ गई? ऑर्डर करना. ठीक है? डोंट शाउट, शट द डोर, दीज आर कमांड, आदेशित करना. ठीक? चलिए, लेट्स कम टू अनदर वन. अगर हमने किसी को कहा प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दीजिए, इज इट ऑर्डर? नो, इट इज नॉट ऑर्डर. हमने क्या कहा? प्लीज. मैंने क्या कहा? प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं. या कुड यू प्लीज गेट मी सम मिल्क, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन. प्लीज हम कह रहे हैं, है ना? तो ऐसे सेंटेंस, प्लीज शो मी द वे, कृपया मुझे रास्ता बता दें. सो नेक्स्ट इज पास मी द वाटर बॉटल प्लीज, कृपया मुझे मेरी पानी की बोतल दे दें, पकड़ा दें या दे दें, है ना? तो ये दोनों सेंटेंस क्या है? दे आर शोइंग रिक्वेस्ट. दे आर शोइंग बेटे रिक्वेस्ट. ठीक है? दिस इज, दे आर शोइंग रिक्वेस्ट. क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, दे यूजुअली हैव प्लीज ईदर शुरू में होंगे या बाद में होंगे. ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्लीज इज गिवन ईदर पहले और बाद में, दे आर इंपेरेटिव सेंटेंस. लेकिन इंपेरेटिव में भी हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है? प्लीज बेटा ये कर दो ना, रिक्वेस्ट करते हैं ना, तब तो बच्चे करते नहीं है. प्लीज बेटा पानी ला दो, नहीं, गो एंड गेट मी अ वाटर, फटाक से लाते हैं. ठीक है? तो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट. But we must prefer request with our kids. Okay? With our kids or elders.
सो प्लीज शो मी द वे, कृपया हमें रास्ता बता दें, रिक्वेस्ट। पास मी द वाटर बॉटल प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है, प्लीज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैजिकल वर्ड्स। ओके, ये हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, और बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो भी फॉर्म होगा। ठीक है, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज आर द मैजिकल वर्ड्स। ओके, चलिए फटाफट, दिस इज डन, रिक्वेस्ट। थर्ड इज यू शुड ईट बैलेंस डाइट। इसमें भी बेटा शो मी द वे, यू। ठीक है, व्हेन इट इज नॉट गिवन, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? यू। सब्जेक्ट विल बी यू। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपको मिल रहा है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, सिंपली आप अपने से लिखेंगे YOUU। डन? ये आपको भूलना नहीं है। डोंट थिंक कि मैम ने तो दिया नहीं है सेंटेंस में नहीं दिया तो मैं कैसे लिखूं अपने से ही लिखना है। ठीक है, कीप इट इन योर हेड। ओके, नेक्स्ट इज यू शुड ईट बैलेंस डाइट। आपको हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, यू शुड टेक बैलेंस डाइट। हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। हैव सम फ्रूट्स, दे आर गुड फॉर हेल्थ। कुछ फ्रूट्स भी लेने चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स भी खाने चाहिए, लेने चाहिए, बिकॉज हम फ्रूट्स हमारे सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या बता रहे हैं हमें? दे आर गिविंग अस एडवाइस। दे आर गिविंग अस एडवाइस। क्या कर रहे हैं? एडवाइस। ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं हमें। ठीक है, कोई चीज बता रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो इसमें भी ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है यू शुड ईट बैलेंस डाइट, सो इट इज गिवन यू। हैव सम फ्रूट्स, दे आर गुड फॉर हेल्थ। दे आर गुड फॉर योर हेल्थ भी लिख सकते थे। इट्स नॉट गिवन, विल बी यू। विल बी यू। बात समझ में आ गई? इज इट क्लीन? इट शुड बी वेरी क्लीन, क्रिस्टल क्लीन। ठीक है, in case if you are having any doubt, please do comment in comment section. ठीक है, so these are the various imperative sentences telling us about command or order, request and advice. ठीक है, so these are various types of sentences. ठीक है, mostly ये sentences, take your seat, please sit down. ठीक है, mostly begins with verbs in their simple forms. मतलब देखिए, have, shut, don't, ये सारे verb के simple forms होते हैं. They are included and starts with this only. ठीक है, mostly begins with verbs in their simple forms. ठीक है, this is clear. Subject is usually you, generally not given. ये समझा चुके. Okay, done. अच्छा, one thing more. Whenever we are requesting for something, we have to say please. Not only on the board or in the classroom, but also in our day-to-day life and in real life. ठीक है, ऐसे sentences, imperative sentences जो command करते हैं, ठीक है, forceful command, ठीक है, forceful command कर रहे हैं, ऐसे sentence might end with an exclamation mark. जैसे call him right now, तुरंत के तुरंत बुलाइए. ठीक है, so when we write call him right now means we are giving forceful command. ठीक है, we are giving forceful command. I must write it down. Call him right. Call him right now. Okay. So call him right now में हमने exclamation mark
लगाया है इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप. वाई? बिकॉज द कमांड इज फोर्सफुल. ठीक है, कमांड इज फोर्सफुल. तो जब भी कोई भी कमांड होगा फोर्सफुल, इट कुड एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो this is all about imperative sentence. This is all about imperative sentence. One thing more I would like to tell you, difference between advice and advise. Okay, what is the difference between advice and advise? This is your homework that you have to tell me the difference between advice and advise. Advice and advice. ADVICE, advice. स निकल रहा है. क्या निकल रहा है? स. क्या निकल रहा है? स. ADVISE, advise. क्या निकल रहा है? ज. Z. क्या निकल रहा है? Z. ठीक है, दिस इज टेक अ स्क्रीनशॉट. This is a noun. This is a noun. ADVICE, advice is a नाउन. ये एक नाउन है जिसका मतलब है सलाह. सलाह. ठीक है. ADVISE, एडवाइस. ज निकल रहा, आगत वर्ण है ना, अ ज फ. ज. ठीक है. दिस इज वर्ब. ये क्या है? वर्ब है. ये क्या है? मतलब सलाह देना. सलाह देना. ठीक है. Advice means salah. Advice means salah dena. Doctor gave me a piece of advice to have balanced diet. ठीक है? Done. And this is advice. Salah. According to my advice. ठीक है? So this is difference between the two advice. ADVICE, advice में स साउंड होगा. ADVISE, एडवाइस में ज आगत वर्ण जी साउंड करेगा. इट इज एडवाइस इज अ नाउन. एडवाइस इज अ वर्ब. एडवाइस सलाह है और एडवाइस सलाह देना है ना. गॉट इट? इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब है सलाह देना. डॉक्टर एडवाइज मी टू ईट हेल्दी एंड रिच फूड. ठीक है. कभी भी एडवाइस को प्लूरल फॉर्म में एडवाइजेस नहीं कहेंगे. इट विल रिमेन एडवाइज. डॉक्टर एडवाइज्ड मी. डॉक्टर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस. एक एडवाइस दिया तो. डॉक्टर गेव मी 2 पीस ऑफ एडवाइस. 2 एडवाइस दिया. होप this is all clean and clear for everyone, the difference in between the advice and advice. So let's wrap up our session today. What we have studied today, just फटाफट wrap करते हैं. क्या क्या? Imperative sentences are the sentences which gives us order, request or advice. It always starts with capital letter and ends with full stop. But sometimes when the command or order is forceful, it could end with exclamation mark. And important thing which we have learned is difference between advice and advise. Advice is a noun. Advise is a verb. Advice मतलब सलाह. Advise मतलब सलाह देना. Advise हमेशा as it is use किया जाएगा. Advices नहीं लिखा जाता. We can use it as a piece of advice, a 2 piece of advice, thrice advice, like this. Hope you enjoyed the video. Keep watching, keep tuned.